Yes, ma'am. You can start. Welcome. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, um, today we are going to talk about one of a very, very important topic, which is also very close to my heart. And I think being in academia, being a teaching faculty of college, you all may have been involved at one side or another with doing a research. So today we are going to talk about planning and designing research studies, and I will be discussing you both type of research that would involve the qualitative research as well as the quantitative research. So for my introduction, I am Amina Mozzam, working as tenured professor of psychology and chairperson psychology department at Lahore College for Women University. And also have been involved for a very long time in teaching and mentoring. Little more about myself. My area of specialization is clinical health psychology. For the last 20 years, I am working in this domain. A couple of PhDs I have supervised so far, and a number of MS scholars have been graduated under my supervision. For instance, since we were talking about research, 100 research papers, couple of other assignments have been given to me with regard to research, served as director research for a very long time at Lahore College and looking at the Central Research Lab. I have the experience of working with WHO since last 4 years after the COVID. We have been working on developing the mental health rehabilitation policy 2030. The guidelines has been already shared in this March. Have been the part of different several funded research project and couple of other assignments. As you can see, I'm also working as a chief editor for one of the journal, which is Journal of Research in Psychology. I believe that it's important to share your profile and to know about the audiences. I know that you are much more in numbers, so the only thing I can know is that you all are respected faculty members of different colleges. Why specifically I'm talking about these international visits? Because during the last couple of years, I have been visiting several universities exclusively. The last year was visiting 22 UK universities from Oxford, Cambridge, Glasgow, and many more. And I have been involved in learning and having an overview about their research practices, that how these universities are excelling in their research domains and what would be the learning leverages we can take back to Pakistan. And I believe that they are doing excellent is that whatever the kind of the research work we are taking up in Pakistan is also very valuable and it's very, very important, because with the kind of the infrastructure we have, with the kind of research facilities the faculty is having in Pakistani colleges and universities, I think you people and we are doing an excellent job. ट्रेन रिसोर्सेज के साथ और इतने हम्बल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एंगेज करने के साथ हम लोग अपने एक महदूद से टाइम में रिसर्च में काफी सारा काम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ हमें ये देखने की जरूरत है कि हम कौन सी टाइप कौन सा काम कहाँ टेकअप करें तो हम शायद कोई लिटरेचर के गैप में वैल्यूएबल एडिशन कर सकेंगे। सो माय पर्पस इज टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी वेरी इनिशियल टॉपिक, what is research, but taking it up to the next level. Like to me, if I would be having a board and a marker in my hand today, तो मैं शायद सबसे पहले इस word research को bifurcate करती into two parts, that re and search. So many times the problem is there, the phenomena is there, but all we have to do is to look at it from a new perspective. यानी वो चीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, हमारे सिस्टम में, हमारे सराउंडिंग्स में होती है, लेकिन हम उसको जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ देखना चाहते हैं, उसको जो कॉनोटेशन देना चाहते हैं, वो एक नए तरीके से वो रिसर्च को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं एक डेफिनेशन मैंने रिसर्च की खुद से अपनी समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई, जो मैं पहले आपसे शेयर करूंगी। देन वी आर लुकिंग इनटू द पार्ट ऑफ रिसर्च और कंपोनेंट्स जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किए हैं।
So for my understanding, how I define research is a systematic, well organized and logically sound method of investigation to certain questions which could be pertaining to any psychological problem, social problem, economical problems, financial problem or any other problem which is beneficial for human being or एनिमल्स। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि अल्टीमेटली एक आउटकम प्रोवाइड कर रहा है इंसानों को या फिर जानवरों को, क्योंकि रिसर्च दोनों के लिए हो सकती है, और वो सिस्टमैटिकल है, लॉजिकल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और हम उसको एक बहुत वेल मैनेड तरीके से लॉजिकली कर रहे हैं। जब हम इसकी डिटेल इस ग्राफ की तरह इस पिक्चर की तरफ आते हैं तो वी गेट टू नो कि जो कुछ बातें की मैंने वो ऑलरेडी इसका पार्ट है। लाइक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ऑफ कोर्स वी जस्ट कांट हैव अ सैंपल विद अस फर्स्ट एंड देन वी डिसाइड कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी। ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड होते हैं हम रिसर्च में, क्योंकि विद सब्जेक्टिविटी एंड विद पर्टिकुलर बायसेस देयर इज नो यूज टू कंडक्ट एनी रिसर्च। empirical evidence should be there some and करते हैं जैसे किसी मेडिकल फील्ड कोई रिसर्च, तो हमें उसके लिए कि एम्पिरिकल एविडेंस के होने के बाद ही हम उसको देखेंगे कि इसे हम क्या करेंगे। देन रेप्लिकेबिलिटी इज एन आइडियल थिंग कि हम स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में देखें कि हम कोई भी रिसर्च हैं उसको हम रिपीट किया तो मोस्ट लाइकली एंड प्रेफरेबली ट्रांसपेरेंट होना ये होता है कि अगर हम किसी रिसर्च को कर रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम वी आइडेंटिफाई कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है, यहाँ पे कोई टाइप 1 एरर है, यहाँ पर कोई टाइप 2 एरर है, यहाँ पे हमारे पास कोई लेट्स से कि हमारी पी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रही जितनी हमें चाहिए, आइडियल नहीं आ रही, तो वहां पर हम इसको शेयर करते हैं विद पीयर ग्रुप, विद कॉलीग्स, और हम उसको रीडू करते हैं रादर देन कि हम उसको इग्नोर करें और हम आगे चलते जाएं। फिर हमारे रिसर्च के अंदर इसी तरह डिसेप्शन का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, इन सब चीजों में भी हमें ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। देन लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग विदाउट हैविंग अ लॉजिक, आई थिंक वो है, और हम जब तक एक सिस्टम या एक लॉजिक को फॉलो नहीं करते हम कभी भी जो है वो रिसर्च को नहीं कर सकते। देन पीयर रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम एक रिसर्च को टेकअप करते हैं उस रिसर्च को हम जब एक फाइनल स्टेजेस पे पहुंचते हैं, रिसर्च रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, तो वी टेंड टू डिस्कस इट विद अदर पीयर ग्रुप्स। हम ये नहीं करते कि हम उस रिसर्च के रिजल्ट्स को सिर्फ अपने तक रिटेन करें और हम उसको लोगों से ना करें, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करते, पीयर रिव्यू नहीं होती रिसर्च, तो तब तक हमें ये नहीं पता लगता कि उसके ऊपर हमें क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूसरे लोगों से रिसीव हुई है। इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब तक आप एक इटरेटिव प्रोसेस से नहीं गुजरते आप उसमें से कुछ भी बेहतर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। Now looking at how we are going to plan a research, this is also very very important to see. Like सबसे पहली और important बात ये है कि we are going to identify issues and options. Like जब भी हम कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं तो सबसे पहली बात जो होती है वो ये होती है कि we have to see कि हम किस इशू के ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स से कि आपने कोई भी एक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई किया कि आपने इसके ऊपर काम करना है, देन हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि क्या हम उस प्रॉब्लम को किस किस सिनेरियोज में हम उसको देख सकते हैं। देन उस प्रॉब्लम के इस इशू के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर हम लोग गोल्स बनाते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और हम अपनी प्रायोरिटीज बनाते हैं कि जो इशू हम आइडेंटिफाई करने चाह रहे हैं वो क्या हम लोग एक सोसाइटी के लेवल पे देख रहे हैं, एक लैब की हद तक देख रहे हैं, उसको हम इंटरनेशनली देख रहे हैं, उसको हम लोग नेशनली देख रहे हैं, या हम उसको पूरे ग्लोब में देख रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्रायोरिटाइज कलेक्ट करेंगे, हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमने ये डिजाइनिंग नहीं की कि हमने इस डाटा को जो है वो कलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया,
उसको हमने कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमारी ये प्लानिंग नहीं होगी और उसको हम एडिक्वेटली ड्राफ्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस रिसर्च में से कुछ नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज आती है उसमें इवैल्यूएट इम्पैक्ट्स ऑफ प्लान एंड प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक रिसर्च को प्लान करते हैं तो हम ये इवैल्यूएट करें कि उस रिसर्च का इम्पैक्ट क्या होगा। लेट्स से कि हम अगर कोविड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोविड के अंदर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब आ गया और उसके ऊपर साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया कि जी हमारा इशू ये है कि हमने कोविड से लोगों को बचाना है। कोविड से हमने लोगों को बचाना है, हमने उसके लिए क्या करना है, हमने वैक्सीनेशन बनानी है। वैक्सीनेशन बनानी है, हमने वैक्सीनेशन जो है उसको हमारे पास टाइम नहीं है कि हम टेस्ट कर सकें, हम उसको कैसे वैक्सीनेशन को यूज करेंगे। अच्छा जी, हम जो है वो ट्रायल एंड एरर पे जो कंपनीज भी वैक्सीनेशन तैयार करेंगी और उसके कोई इनिशियल जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आएंगे, हम उनको जी लोगों को देना शुरू करते हैं। फिर ये कि आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पे रेपोजिटरीज थी, इंटरनेशनल लेवल पे रेपोजिटरीज थी, जो ये देख रही थी कि कितने लोग कोविड की वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कितने लोगों को कोविड हो रहा है, उनके टेस्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये भी एक मतलब प्रोसेस प्लानिंग का एक हिस्सा था। उसके बाद ये कि जब वो आपने देखा होगा कि जब कोविड के दौरान वैक्सीनेशंस लग रही थी, तो वो सब लोगों को एक जैसी वैक्सीनेशंस नहीं लगी। कुछ लोग जो हैं उनको एक टाइप की एक्स्ट्राजेनिका लगी, कुछ को कोई और लगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो है वो वैक्सीनेशंस लग रही थी। तो उस दौरान साथ साथ उन पे टेस्ट हो रहे थे, उनकी वैल्यूएशंस हो रही थी। तो अब हम देखते हैं जब इवैल्यूएट कर रहे होते हैं उसके इम्पैक्ट को, तो फिर रिव्यू एंड अडॉप्ट प्लान्स भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट नहीं हुई, कुछ वैक्सीनेशन दोबारा भी रिपीट हुई और ये डिसाइड किया गया कि ये बिल्कुल ठीक है, ये लगती रहेंगी। तो इसी तरीके से हम रिसर्च के अंदर भी जो है वो अपने इशू, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक रिव्यू भी करते हैं, प्लान्स को अडॉप्ट भी करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ये शायद देखने में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ओवरलैप कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ओवरलैपिंग, क्योंकि वंस अ ड्राफ्ट प्रपोजल हैज बीन टोटली फॉर्म्ड, उसके बाद हमारा सारा जो फोकस होता है पॉइंट 6 से लेके 9 तक उसकी इवैल्यूएशन, उसके रिव्यू और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर टू टाइप्स जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, that is the qualitative research and quantitative research. And what we are going to see in these two types ki how do they differ and what are the similarities between these two researches. तो सबसे पहली चीज जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे या क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ द रिसर्च। अगर हम ये सोच लें कि हमने ऐसा एक रिसर्च टेकअप करना है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज देखना चाह रहे हैं, परसेंटेजेस देखना चाह रहे हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन ली, कितना नंबर जो था उसके अंदर लोगों का कोविड के टेस्ट में पॉजिटिव आया, कितने उन लोगों का पॉजिटिव नहीं आया, तो ये एक क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होगी और हम हाउ मेनी एंड मच में क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते, तो व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, ये एक व्हाई क्वेश्चन जो है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होगा, ये क्वालिटेटिव रिसर्च को जनरेट करेगा। सो इसी तरह डेटा की टाइप, अगर आप हाउ मेनी एंड मच देख रहे हैं तो जाहिर है कि डेटा की टाइप में आपके पास नंबर्स, स्टेटिस्टिकल रिजल्ट और इस तरह की चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप डेटा की टाइप जो है वो क्वालिटेटिव ले रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन, सिंबल्स, वर्ड्स, इस तरह की हमारे पास चीजें आएंगी जिसमें हम पैटर्न्स अक्रॉस द थिंग्स जो हैं उनको evaluate करते हैं। नाउ इफ यू लुक अबाउट द अप्रोच कि डाटा जो है उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में किस तरह की अप्रोच हम यूज कर रहे होते हैं, तो अगर हम एक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जो कि जैसे लिकर टाइप टेस्ट होते हैं या सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं, तो वहां पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च लगा रहे होते हैं। जहां पर हम डेटा जो है वो क्वालिटेटिवली ले रहे हैं, वहां हम ऑब्जर्वेशंस देख रहे होते हैं, थीम्स निकाल रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं, हमारे पास मौजूद इंटरव्यूज की, टेक्स्ट की, कंटेंट की, वो क्वालिटेटिव डाटा होता है। तो वो अप्रोच जो है डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर हम एनालिसिस की बात करें तो क्वांटिटेटिव में आपको बड़े खूबसूरत चार्ट, डायग्राम्स, बार्स, आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस,
आपको वैल्यूज मिलती हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव में डील करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑलवेज ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डाटा एंड नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे हम आईपीए करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, हम आर्किवियल डाटा देखते हैं, इस तरह की चीजें हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। तो ये ग्रॉस डिफरेंस है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इन दोनों एस्पेक्ट्स के विद इन इनकी डोमेन के अंदर हम कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द मेजर स्टडी डिजाइंस विच आर बीइंग यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, इसमें जो हम मेजर डिजाइन यूज करते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। quasi experimental design where the experimental design is truly not possible, वो हम quasi experiment भी डिटेल में पढ़ेंगे। then descriptive analysis where the particular situation and group जिसकी characteristics को हम एग्जामिन कर रहे होते हैं वो भी हम क्वांटिटेटिव में पढ़ेंगे। देन कोरिलेशनल रिजल्ट जो कि सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है, लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी हम कोरिलेशनल रिसर्च में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट लाइज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इस बकेट में हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम लिव्ड एक्सपीरियंसेस देखते हैं फॉर एनीवन इन अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन, ये डिटेल से पढ़ेंगे। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जामिनिंग द कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इस पे हम बात करेंगे। एंड देन ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें हम एक हाइपोथेसिस से थ्योरी की तरफ जाते हैं मोस्टली, लेकिन इसमें हम मोस्टली हम लोग थ्योरी से हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं, इसमें हम हाइपोथेसिस से थ्योरी की तरफ जाते हैं। सो व्हेन अ रिसर्चर डेवलप अ थ्योरी दैट इज बीइंग यूज्ड इनटू अ ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये मेजर रिसर्च के टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। नाउ अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का पहला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट डिजाइन है विच इज वेरी पॉपुलर अमंग रिसर्चर्स, और इसको प्योर साइंसेज में भी लोग पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज में भी पढ़ते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या मेनली ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिजाइन जो है इट लुक्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर इंस्टेंस इफ आई से दैट देयर इज एन ई ए, देन ऑफ कोर्स द बी विल बी देयर। तो हम इसमें देख रहे होते हैं कि एक वेरिएबल जो है उसके इंक्रीज या डिक्रीज से दूसरा वेरिएबल जो है वो कैसे इफेक्ट होगा। एंड इट आल्सो रिक्वायर्स हैविंग कंट्रोल ओवर एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल, यानी इसमें टू टू हैव इट, हम इसमें रिसर्चर का अगर कंट्रोल नहीं होता तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम लोग एक जनरल बात पहले आपको बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट फिगर्स की तरफ जाएंगे कि वी एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं जिन पे हम कोई भी ट्रीटमेंट कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे होते, दैट इज कंट्रोल ग्रुप। सो इन कंट्रोल ग्रुप एंड इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें यहाँ हम एन नंबर मेथड यूज कर लेते हैं या हम ड्रॉ हेड टेक्निक यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की टेक्निक के बेसिस पे हम रेंडमली असाइन कर देते हैं सब्जेक्ट्स, मीनिंग कि वो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, नॉन बायस सैंपल होगा। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजाइन फॉर टेस्टिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, बिकॉज ये रेंडमाइजेशन और बायस को कंट्रोल करता है, इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ दिस इज द क्रक्स जिसमें सारी ही बातें आ जाएंगी, और अगर आप इसके बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन दोनों को समझ लेंगे तो मिक्स सब्जेक्ट डिजाइन हमें बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। लेट्स से कि हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जा रहे हैं जिसमें हमने एक सेट ऑफ सैंपल लिया, जिसमें हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट 1 से 12 तक जो है वो हमारे पास सैंपल है, और 6 पार्टिसिपेंट्स को हम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो ये डिजाइन जो है ये बिटवीन सब्जेक्ट ग्रुप डिजाइन कहलाएगा।
एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। लेट्स से कि हम रिसर्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस क्या होगा। यानी अगर हम लोग एक सर्टन तरह का नॉइज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उस नॉइज का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। अब हम जो कंट्रोल ग्रुप है उसको एक कंट्रोल कंडीशन में लैब में हम कहते हैं कि इनको एक सॉफ्ट सा म्यूजिक जो है वो लगा रहे और वो इनकी नॉइज एक चलती रहे और साथ साथ ये अपना टास्क परफॉर्म करते हैं जो भी उनको एक्सपेरिमेंट में दिया गया। और उसके बाद हम लोग देख लें कि क्या इनकी कोई प्री पोस्ट असेसमेंट में हमें फर्क नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर पार्टिसिपेंट्स को नॉइज के डिफरेंट लेवल से एक्सपोज करवाते हैं। पहले सिर्फ म्यूजिक होता है, फिर उसके बाद एक बीच में एक बजिंग साउंड इंक्रीज हो जाती है, फिर एक ढोल की आवाज भी आने लग जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा शोर, ट्रैफिक के हॉर्न और सायरन आने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा एक वेरिड किस्म का जो शोर है वो आता है और हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है एक मेजर ग्रुप को आपने दो ग्रुप्स में कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल में डिस्ट्रीब्यूट किया। दोनों के ऊपर आपने एक को कंट्रोल सिचुएशन में रखा, दूसरे के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इम्पोज की और फिर कंपेयर किया कि क्या परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट आया या नहीं आया। दिस इज कॉल्ड बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन। और हम बेसिकली इसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट विच इज बेसिकली टू अस कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं नॉइज का। ओके देन विद इन सब्जेक्ट ऑफ इसको हम विद इन सब्जेक्ट में कि हम पार्टिसिपेंट्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल ग्रुप में पहले 12 के 12 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस कराएंगे वो एक स्लो सा अच्छा सा राइमिंग सा म्यूजिक और उसका इम्पैक्ट देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे वही के वही 12 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको हम लोग वो नॉइज वाली जो कंडीशंस हैं जिसमें एक इंक्रीजिंग साउंड ऑफ नॉइज है, हम उन्हें उसमें डालेंगे और फिर हम उनका उनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देखेंगे। यानी हमने टोटल ग्रुप ऑफ 12 पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल ग्रुप वाली कंडीशन थी उससे भी एक्सपोज कराया, जैसे एक्सपेरिमेंटल से भी एक्सपोज करवाया जैसे कि हमने बिटवीन सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंटल को करवाया था। सो दिस इज नोन एज विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, जिसमें हम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दोनों ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को कंपेयर करते हैं। Now looking at the third one, if you have by now understanding about the first two types, तो आपको तीसरी तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अगेन हमारे पास सैंपल है पार्टिसिपेंट 1 से लेके 12 तक। तो पहले हम वो फर्स्ट हाफ जो हमने बिटवीन सब्जेक्ट का किया था वो यहाँ पर हम वो रिपीट कर रहे हैं। यानी कि पार्टिसिपेंट्स को हमने कंट्रोल ग्रुप को 6 पार्टिसिपेंट्स में डाला और 6 को एक्सपेरिमेंटल में, और इनको हमने एक को कंट्रोल कंडीशन में हमने नॉइज ऑफर की और एक को हमने इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉइज ऑफर की और उनकी परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट देखा। उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे इसी कंडीशन को, यानी कि वो जो कंट्रोल ग्रुप थे उन पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है वो हम इम्पोज कर देंगे और जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले थे उनको हम कंट्रोल ग्रुप वाली कंडीशन जो है वो एक्सपोज कर देंगे जैसे हमने विद इन सब्जेक्ट किया था। तो इससे ये होगा कि वो जो हमारे ग्रुप्स हैं वो दोनों तरह की ट्रीटमेंट कंडीशन से एक्सपोज होंगे बारी बारी। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी both between groups and within group comparison on the variable of interest, so that is called the mixed experimental research design. Generally ये experimental research design हम जब कोई ट्रीटमेंट कंडीशंस देख रहे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं, ड्रग्स टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कर रहे होते हैं या प्योर साइंसेस के अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये हम लोग वहां पर यूज करते हैं। So, after experimental research design, I will be shedding some light on Kozai experimental research, which is my favorite kind of a design, because Kozai experimental design is generally being taken up when we do not have the opportunity to conduct the complete and authentic experimental research design. So, Kozai experimental हम वहां पे कर रहे होते हैं जहां पे एक तो ये कि जो element of interest होता है वो हम लैब में एक्सपोज नहीं करते, दैट लाइज विद इन नेचुरली विद द पार्टिसिपेंट्स। यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द सैंपल, वहां पे कोजाई किया जाता है।
Like let's see how this is of life. कैंसर में कीमोथेरेपी जो है उसके एक्सपोजर से एक इंडिविजुअल जो है उसकी जी मैम आपकी हेलो वॉइस जो है ना वो periodically जो है वो डिस्टॉर्शन कर रही है ना। मैं शायद इंटरनेट बदल के देख सकती, मेरी तरफ से तो नहीं, इंटरनेट भी मेरा सही कनेक्टेड है। तो क्या करें आप बताएं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या सजेशन होगी? मैम आई थिंक इंटरनेट पे इशू है, इंटरनेट एक दफा चेक कर लें आप, बाकी डिस्कनेक्ट कर लें करके हम, चलें ठीक है। मैं लेट मी गिव इट अ ट्राई, सॉरी अपॉलजीज फॉर द डिस्ट्रप्शन। मैं दोबारा से एक दफा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ। जी अम, अब हम स्टार्ट करें दोबारा से। जी मैम बिल्कुल आवाज बेहतर है अब कुछ? जी मैम क्लियर। ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन, कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि इट इज डिफरेंट देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बिकॉज द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द सैंपल। जिसमें मैंने आपको एचसीवी वायरस की एग्जांपल दी कि ये एक वो वायरस है जो किसी को हम एक्सपेरिमेंटल लैब में एक्सपोज नहीं कर सकते फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। रादर ये प्री एग्जिस्टिंग होगा किसी सैंपल में तो हम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। So experimental studies also seek to identify a cause and effect relationship, although they are less powerful than experimental design. और इसमें हम सब्जेक्ट्स को रैंडम असाइनमेंट भी नहीं कर सकते और इसके अंदर हम कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं हमारे पास होता। सो जनरली जो हमारा रियल वर्ल्ड है इसमें जो क्लिनिकल केयर के वेरिएबल्स होते हैं दे ऑफन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ड्यू टू एथिकल, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल कंसर्न्स। सो हम इसे वहां पर करते हैं जहां हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे कोई ड्रग टेस्ट करनी है, कोई और एक्सपेरिमेंट करना है, वहां पर हम इन्हें इस तरह के डिजाइन को इस्तेमाल करते हैं। या अब आप देखें जैसे हम पेन मैनेजमेंट के लिए देखते हैं कि डिफरेंट तरह की मेडिकेशंस यूज होती हैं और अगर उनका इम्पैक्ट नहीं लग रहा होता, उसका इफेक्ट नहीं लग रहा होता, तो फिर डॉक्टर्स उनको चेंज कर देते हैं। तो ये जाहिर है जो उस कंडीशन में होगा सिर्फ हम उसे ही एक्सपोज कर सकेंगे इन मेडिकेशंस के लिए। ये एक क्रॉस सा कंपैरिजन है बिटवीन क्रोजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वर्सेस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस में सबसे पहली बात ये है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम सब्जेक्ट्स को रैंडम असाइन करते हैं, क्रोजाई में हम इनको रैंडम असाइन नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च जो है और वो डिसाइड करता है कि कौन सा बंदा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट होगा, कौन सा कंट्रोल ग्रुप का पार्ट होगा। लेकिन रिसर्चर जो है वो कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग होता है ग्रुप्स में। देन तीसरी करेक्टरिस्टिक्स के एक्सपेरिमेंटल का कंट्रोल ओवर द डिजाइन काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करते हैं तो वहां पर
जो कंट्रोल होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते. नाउ लुकिंग एट द डिस्क्रिप्टिव research. Descriptive research is a very interesting kind of a research, जिसमें we generally aim to accurately and systematically describe a population, situation, or a phenomena. It can answer what, where, when, and how questions, but of course, it couldn't tap why questions. So, descriptive research design can be used for a variety of research methods to investigate one method or another method. आपने इसकी सबसे एग्जांपल ये है जिसमें आप लोग देखते हैं कि आप क्वेश्चन या सर्विस यूज करते हैं, जिसमें आपने आगे एक लिकट टाइप रेटिंग स्केल लगाया होता है, लाइक सेटिस्फाइड टू डिससेटिस्फाइड, या इस तरह की कोई चीज कि आप एक किसी चीज के ऊपर लोगों का ओपिनियन लेते हैं, उनका परसेप्शन लेते हैं, उनका एटीट्यूड लेते हैं, और उनकी सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, एग्रीमेंट, ये चीजें उसके ऊपर आप असेस करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को फर्दर हम 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं. मैम जी आप काइंडली वीडियो ऑफ कर दीजिए, आई थिंक उससे क्वालिटी बेहतर हो जाएगी. अच्छा, शायद मेरा ख्याल है वो गलती से ऑन हो गई है. मैं जी. इसको डेफिनेटली ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो हमें जरूरत भी नहीं है वीडियो की. सेकेंड. जी ठीक है. My apologies to you because I think मैंने अभी तक शायद जितनी भी ट्रेनिंग्स कराई हैं वो उसमें से कोई भी मैंने ऑफिशियल इंटरनेट पे कराई हैं. तो ये मुझे लगता है शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट वी कांट से. कभी पहले ऐसा हुआ तो नहीं, but आज आप लोगों को थोड़ी करनी पड़ रही है. तो है. अच्छा, हम बात करें जी सर्वे मेथड की, कि सर्वे मेथड जो है इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड इट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक. एंड यू ऑल आर वेरी वेल फेमिलियराइज विद द सर्वे टॉपिक, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी कॉलेजेस में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज्यादा जो रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं सोशल साइंसेज में particularly, that is a survey method. Then observation is basically a technique that is utilized for observing and recording participants. Observation भी further guided observation हो सकती है, unguided observation हो सकती है, different type की हो सकती है. Then we talk about the case studies, and case study is basically used to study techniques for gathering a specific phenomena, and it is a method which would enable us to study a particular situation. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि केस स्टडीज जो हैं वो एक इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं, केस स्टडी एक इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, और केस स्टडी एक कंट्री की भी हो सकती है. लाइक फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान को भी एज केस स्टडी ले सकते हैं. Now, looking at the type of service, I find this very important to include because सर्वे की जो टाइप्स हैं इसमें हम लोग चूंकि सर्विस काफी फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, तो एक आइडिया लेना जरूरी है कि किस तरह के सर्वे कराए जा सकते हैं. लाइक क्रॉस सेक्शनल सर्वे स्टडी सर्विस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सर्विस. आई थिंक क्रॉस सेक्शनल आर द वन विच वी जनरली यूज, और इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक फॉर इंस्टेंस एज यू कैन सी इन द टेबल कि हमारे पास 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, और हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से इफ वी आर going to conduct a survey on women, तो हम कहते हैं कि हम उन women पे देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती हैं, उन women पे देख रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करती हैं, और उन women पे देख रहे हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं. Variable could be anyone, but that's how we divide the groups. Then longitudinal study, इसी तरह हम एक ग्रुप लेते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि जो पहली रिसर्च में हमने 3 अलग अलग ग्रुप लिए, हम उसमें देखते हैं कि हम सिर्फ ग्रुप 1 जो है वो हम ले रहे हैं वो वुमेन जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं, और हम उनको फिर एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा से असेस करते हैं, और उसी ग्रुप को हम सेकेंड टाइम सर्वे देते हैं, और फिर उसी ग्रुप को हम थर्ड टाइम सर्वे देते हैं, और हम देखते हैं कि लेट्स से कि वो वुमेन जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही थी, तो बैंक की जो पॉलिसीज हैं, चेंजिंग पॉलिसीज हैं, उनका फीमेल्स के वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या उनके टाइमिंग्स जो हैं क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं.
उनके ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो रही हैं। तो आप इस तरह से एक ग्रुप को अगर अक्रॉस 3 टाइम्स कंपेयर करते हैं तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। एंड आई मस्ट से कि ये वो रिसर्च का स्टडी डिजाइन है जो हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है तो हम अगर उससे कोई भी एक जो उनकी न्यूट्रिशन है, उनकी हेल्थ का स्टेटस है, या उनकी कोई प्रेफरेंसेस हैं, या उनके एटीट्यूड्स हैं, कॉलेज में एंट्री के टाइम पर असेस करते हैं। उसके बाद फिर हम 6 मंथ्स के बाद फिर असेस करते हैं, और फिर हम 1 या 2 इयर्स के बाद फिर असेस करते हैं उन्हीं सेम बच्चों से, उसी सेम बच्चों के ग्रुप से। तो दैट कुड इजीली बिकम अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो कोई ऐसी चीजें जिसमें हमें लगता है कि विद द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एनवायरनमेंट और उनका जो है वो कोई माइंडसेट चेंज हो सकता है, प्रेफरेंसेस या एटीट्यूड चेंज हो सकता है, ऐसे सिनेरियोस में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन यूज कर सकते हैं। नाउ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, और आई मीन एवरीवन लाइक्स टू गो फॉर इट। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं टू और टू मोर देन टू वेरिएबल्स, और उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप देखते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या मे बी कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बट द प्राइमरी पर्पस इज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बट नॉट टू डिटरमिन द कॉज एंड इफेक्ट। लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं देख रहे होते। इसमें हम और हम कहते हैं if the temperature reduces the academic performance of the students would increase or decrease। हम ये कोरिलेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर कॉज करता है परफॉर्मेंस को या वाइस वर्सा, ये हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख सकेंगे। सो दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओनली रिपोर्टिंग इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज लाइक्लीहुड। अगर हम इनके ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन के जो ग्राफ्स हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, और अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन के बनाएं तो वो इस तरह से होती है। जो एपीए स्टाइल हम टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स में भी हम कोरिलेशंस को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ देयर इज नो कोरिलेशन तो वो उसका भी टेबल आपके सामने है कि वो उसका भी ग्राफ आपके सामने है कैसे बनता है। सो this was all about the first half, which was the quantitative research, and now we are going to give a look to qualitative research design. So one of the very important research design used in qualitative study is phenomenology. I think आपने कहीं ना कहीं कभी एक word सुना होगा IPA का, which is called interpretive phenomenological approach. So phenomenology is an approach in which we want to understand and describe the lived experience or meaning of persons within a particular condition or a situation. For instance, let's say हम अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि कीमोथेरेपी एंड कैंसर की। सो कोई कैंसर पेशेंट जो है उसका ट्रीटमेंट भी काफी लंबा चलता है मोस्टली, और कीमोस लग रही होती हैं। सो एनी पेरेंट जिसके किसी बच्चे को ट्रीटमेंट से वो गुजर रहा हो, तो उसका एक्सपीरियंस जो है एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर कैसा होगा टू टू गिव केयर गिविंग टू अ कैंसर पेशेंट। दैट कुड बी समथिंग जो कि हम फिनोमिनोलॉजिकली उसका लिव्ड एक्सपीरियंस जो है वो देख सकते हैं इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑल्सो जैसे मैंने एचसीवी की बात की थी, तो एचसीवी के पेशेंट्स जो होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट काफी टाइम चलता है, और उसके दौरान उनको बहुत सारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनसे डिटेल में पूछना कि उनका इस ट्रीटमेंट के दौरान जो लाइफ का एक्सपीरियंस था या उनके इश्यूज थे वो क्या थे। So, for example, one example which is stated here is phenomenological questions में ये भी आ जाता है। जैसे अगर किसी एडोलेसेंट को हम ये पूछें, अगर उसकी किसी यंगर सिबलिंग को कोई टर्मिनल इलनेस है, तो हाउ डज इट इफेक्टेड हिज लाइफ। जैसे हम सिबलिंग्स में कहते हैं कि बड़े बहन भाइयों का छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत खेल कूद होता है, एक नॉर्मल लाइफ होती है। तो अगर किसी को कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस है किसी छोटे बहन भाई को, तो हाउ डज इट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ एन एल्डर सिबलिंग। सो इसी तरह हम डिफरेंट इश्यूज में हम ये देख सकते हैं, या लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयरिंग फॉर एन ओल्डर हाउस बाउंड डिपेंडेंट पेरेंट। कुछ लोगों के जैसे बुजुर्ग होते हैं घर में, पेरेंट्स बीमार होते हैं, वो उनको केयर गिव कर रहे होते हैं, तो उनके लिए लाइफ का एक सोशल सर्कल चेंज हो जाता है, लाइफ का मीनिंग चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में भी हम फिनोमिनोलॉजी जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. So now, after giving you a basic understanding about how do we go about IPA, जो लोग इंटरेस्टेड हो इसको समझने में, मैं कुछ चीजें इसके बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इसका जो फर्स्ट हाफ है वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी कि फिनोमिनोलॉजी जो है टू फुली डिस्क्राइब लिव्ड एक्सपीरियंस, इसकी दो टाइप्स हैं. और जो इसका सेकंड पार्ट है दैट्स पर्टिकुलरली मोर एनहांस्ड, या आप समझ लें ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड पार्ट है. इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आईपीए इज अ ह्यूज डोमेन. सो हम जो ज्यादातर यूज करते हैं फिनोमिनोलॉजी यूज करते हैं, बट देयर इज अनदर टाइप व्हिच इज डिस्क्रिप्टिव फिनोमिनोलॉजी. और वो क्या एम करती है? इट एम एंड इट डिस्क्राइब अ लिव्ड एक्सपीरियंस विदाउट अटेम्प्टिंग टू गिव मीनिंग टू इट. अब जब हम बात करते हैं कि हम एक क्वालिटेटिवली किसी का एक्सपीरियंस सुनेंगे, किसी का तजर्बा सुनेंगे, किसी की लाइफ हिस्ट्री सुनेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी एजुकेशन, अपनी समझ के मुताबिक कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी और चैलेंजिंग हो जाता है. सो हसर्ट सेज टू ब्रैकेट और लीव असाइड अवर प्रीवियस नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू सी अ फिनोमेना एज एक्सपीरियंस इज चैलेंजिंग. लेकिन वो इसको, इसका फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि ये बेसिकली हम अपने प्रीवियस नॉलेज और इंटरेस्ट को साइड पे रखकर उसके वर्बैटम, उसकी जो स्टोरी है उसमें से थीम जनरेट करते हैं. इंटरप्रेटिव फिनोमिनोलॉजी विच वी ऑफन यूज, और वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इज टू रिवील एंड इंटरप्रेट implicit meaning in a lived experience. Like Heidegger says that researchers cannot extract themselves from the research. तो आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप उससे अपने आप को साइड पे नहीं रख सकते. Ponty says interpretation are made from our own perspective. जब हम एक थीम्स पढ़ रहे होते हैं, हम 5 लोगों के इंटरव्यूज पढ़ रहे होते हैं, उसमें से हम कॉमन पैटर्न्स निकाल रहे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने पर्सपेक्टिव का भी रोल होता है कि हम कैसे चीजों को लिंक अप करते हैं. एंड देन Sartre says that we are always becoming ourselves, क्योंकि जो हम होते हैं हम वही होते हैं, हम उससे हट के कोई और चीज नहीं होते. तो जब हम क्वालिटेटिवली रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर का अपना सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर हिस्सा होता है. Then these are the two other types, ideography and hermeneutics, जिसको मैं अभी नहीं टच करी, but I'm leaving the slides, तो उसमें अगर लोग इंटरेस्टेड हो तो वो इसको भी समझ सकते हैं या इस पर भी अपना नॉलेज जो है वो मजीद enhance कर सकते हैं. Now talking about one of a very very interesting type of रिसर्च विच इज एथनोग्राफी. एथनोग्राफी स्टडीज, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफली बताया कि वो फोकस करती हैं ऑन अ कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे हम पाकिस्तान में अगर कुछ स्पेसिफिक सब कल्चर्स की बात करें, तो वैसे तो हर प्रोविंस में हर जगह पे अपने अपने कल्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो लोगों के लिए अभी भी इतने एक्सेसिबल नहीं है और वो बहुत उनको फील करते हैं कि ये इनको स्टडी किया जाना चाहिए, इनको देखा जाना चाहिए. जैसे कलाश का कल्चर है, जैसे कि चित्राल का कल्चर है, हाउ डू पीपल लिव देयर, उनकी उनकी क्या रस्में हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं. तो बेसिकली द अजम्पशन बिहाइंड एथनोग्राफीज इज दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि खास कल्चर में रह रहे हैं, उनको दुनिया किस तरह से देखती है उसमें जाकर लोग अगर रहें, उनको ऑब्जर्व करें, तो वो रिसर्चर जो कि एथनोग्राफिक रिसर्चर होता है वो उस कल्चर में जाके रहता है, अपना टाइम स्पेंड करता है और वहां पर जाकर उसका पार्ट बनकर देखता है कि वो किस तरीके से वो कल्चर डेवलप हुआ है. एक बहुत फेमस सोशल साइंटिस्ट हैं जिनका मैं यहाँ रेफरेंस देना चाहूंगी. शी इज मार्गरेट मीड, उनका नाम है. सो मार्गरेट मीड वाज एथनोग्राफिक रिसर्चर और वो बहुत बहुत पैशनेट थी अबाउट नोइंग कल्चर ऑफ वन ऑफ अ ट्राइब जो उनके फार फ्लंग थी. सो शी वेंट देयर, शी, क्योंकि दूसरे ट्राइब्स आपको एंटर भी नहीं करते अपने कल्चर के अंदर ना, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते. तो वो वहां पर गई, उन्होंने जाके वहां पर टाइम स्पेंड किया, फिर उनकी एक्वेंटेंसेस बढ़ी, फिर उन्होंने वहां शादी की और फिर पूरी जिंदगी उस ट्राइब के कल्चर को समझने में गुजार दी कि उनकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस क्या है. शी बिकम अ मदर देयर और फिर उन्होंने अपने बच्चों को उस तरीके से उस रेस किया. तो ये तो एक बहुत मतलब हाई एंड की बात है जो मैं आपसे कर रही हूँ, बट शी वाज अ फेमस एथनोग्राफिक रिसर्चर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी उस चीज के लिए डेडिकेट कर दी. बट जनरली एथनोग्राफी का
concept ये है कि for some good time span of a period, a person went there, stays there, and then get to know about the culture of that specific area. तो ये हमारी ethnographic research होती है. Then grounded theory. Grounded theory research begins with the general question problems, like हम initially एक question को लेके चलते हैं, उसको understand करते हैं, फिर different तरीकों से उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके लिए इंटरव्यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम फाइनली कोई थ्योरी डेवलप करते हैं. सो इट्स नॉट एन इजी थिंग और ये भी बड़ा एक लॉन्ग टाइम होता है जिसके अंदर हम लोग डिस्कवरी में लगता है. और आमतौर पर जो हमारे पास रिसर्च का एक बेसिक तरीका है उसमें हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसमें से हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक्सेप्ट हुआ या नहीं एक्सेप्ट हुआ. बट ग्राउंडेड थ्योरी में हम एक फुल फ्लेज कंप्लीट थ्योरी डेवलप करते हैं. अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम ऑफ द कलेक्टिंग डेटा टेक्निक्स जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होती हैं. और वो क्या होती हैं, उसमें पहला हम जो इम्पोर्टेंट वे है उसको हम कहते हैं कि इंटरव्यूज. और इंटरव्यूज की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी. एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं और फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं वो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हमारे पास एक मुकम्मल क्वेश्चनियर की एक शीट बनी हुई होती है और उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स जो हैं वो अपने पार्टिसिपेंट से लेना चाहते हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मौजूद होते हैं लेकिन वो कंप्लीटली फिक्स नहीं होते और एज पर द आंसर, एज पर द रिक्वायरमेंट हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं. उनका स्ट्रक्चर इतना हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होता, मतलब उसे एज पर नीड हम चेंज कर सकते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमारे पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस मौजूद नहीं होता. इसमें हम लोग एक बेसिक आइडिया या हाइपोथेसिस या प्रोब क्वेश्चन लेके चलते हैं और जैसे जैसे इंटरव्यू प्रोग्रेस करता जाता है हम उन आंसर्स की बेसिस पे कुछ और नए सवालात जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं वो हम बनाते जाते हैं. और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे शायद अजम्पशन में नहीं होती कि ये इंफॉर्मेशन भी हमें इस दौरान मिल सकती है. सो व्हेन देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी अवेलेबल टू अस, we generally tend to go for an unstructured interview. Now, another very important type जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज भी हो रही है, this is known as focus group discussion. So FGDs जिसको हम कहते हैं focus group discussions, this is also one of a very very important type of qualitative research technique जिसमें हम लोगों को informally interview करते हैं in a group discussion setting. ये आजकल आप लोग मीडिया पे भी बहुत देखते हैं, वो तो खैर मीडिया के पर्पस के लिए होती है लेकिन हम इसे रिसर्च के पर्पस के लिए करते हैं. 6 to 12 people generally gather in a room to discuss one problem statement और ये 45 से 90 मिनट्स तक के लिए होता है. एक हमारा मॉडरेटर होता है जो फैसिलिटेट करता है ग्रुप डिस्कशन को और जो हमारा ग्रुप होता है वो होमोजीनियस होना चाहिए. यानी अब मैं इसकी अभी आगे अगली स्लाइड पे एग्जांपल देती हूँ कैसे होमोजीनियस होना चाहिए. यानी कि जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो सारे पार्टिसिपेंट उससे लिंक्ड होने चाहिए. एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसे नहीं है कि आप किसी भी 2-4 लोगों को बिठा लें और आप उस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू हो जाएं. देयर शुड बी सम meaningful relevance available. So this is basically a diagram to show how a focus group works. सबसे पहले ये कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स. लेट्स सी, मैं देखना चाह रही हूँ कि HIV एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह की स्टिग्मेटाइजेशन फेस करनी पड़ती है. तो मुझे सबसे पहले पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स वो लेने पड़ेंगे जिनका कोई HIV जो है वो वायरस जो है वो उनका पॉजिटिव आया हो. अगर HIV पॉजिटिव होगा तो वो आगे जाकर एड्स डायग्नोज हो सकती है, लेकिन HIV पॉजिटिव वायरस मैंने आइडेंटिफाई करने हैं किन पॉजिटिव पेशेंट्स में आया है. उसके लिए जाहिर है कि मुझे पंजाब एड्स कंट्रोल अथॉरिटी से रब्ता करना पड़ेगा, हॉस्पिटल से रब्ता करना पड़ेगा और इस तरह की चीजों से करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम पहले पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम उनके मुताबिक एक लिस्ट बनाएंगे
और उन पार्टिसिपेंट्स के हम एक गाइड प्रिपेयर करेंगे कि हमने उनसे क्या सवालात पूछने हैं। जब वो गाइड प्रिपेयर हो जाएगी तो हम उनसे वो क्वेश्चंस को फाइनलाइज करने के बाद एक लोकेशन जो है वो चूज करेंगे जिसके ऊपर हमने फोकस ग्रुप करना होगा। वो लोकेशन क्या होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो लोकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कन्वीनियंटली जो है वो अवेलेबल हो सकें। Let's say we recruit between 6 to 12 participants. At times we need to give them allowance to come, transport का कोई या कुछ उनको हमें facilitation या incentive भी देना पड़ सकता है। और जो है वो समटाइम्स हम उन्हें वैसे वॉलंटरी भी कह सकते हैं कि वो आ जाएं। उसके बाद हम उसके सेशन को एक मॉडरेटर जो एक्सपर्ट बंदा होता है ओवर द टॉपिक वो उसको मॉडरेट करता है एंड दैट सेशन लास्ट फॉर 90 to 120 मिनट्स बाय अ ट्रेन मॉडरेटर। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं उस सेशन को कि इसमें हमारे पास जितनी भी बातें आई, जो भी हमारे पास थीम्स आई, उनको हम कैसे स्टडी करेंगे। ये मैं अभी आगे आपको इसकी कोडिंग और इसका तरीका आईपीए के साथ ही बताऊंगी क्योंकि वो भी सिमिलर ही है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। So here we go about the major analysis in qualitative research. अब जो मैं आपको मेथड आईपीए की एवेल्युएशन के लिए बता रही हूँ, थीमेटिक एनालिसिस जो कि हम फोकस ग्रुप के बात करते हैं, वो भी काइंड ऑफ काफी सारा इससे हमें मिलता जुलता तरीका नजर आता है। सबसे पहले लेट्स से आपने आईपीए जो किया उसमें आपने 4 या 5 पार्टिसिपेंट्स लिए। हमारी जनरली कोशिश होती है कि 10 से ज्यादा सैंपल कभी भी ना लिया जाए। मोस्टली 5 to 6 का एक सैंपल एक आइडियल सैंपल होता है क्योंकि इतने में हमें जो हमारे पर्पस की चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं, डाटा जो है वो सैचुरेशन तक रीच कर जाता है। सो पहले जो हमारे पास इंटरव्यू या टेक्स्ट आता है उसको हम रीड एंड री रीड करते हैं ताकि उससे हम फेमिलियरिटी डेवलप कर सकें उस ओरिजिनल कंटेंट के साथ। उसके बाद इनिशियल नोटिंग करते हैं जिसमें हम फ्री एसोसिएशन करते हैं और कुछ सिमेंटिक कंटेंट लाइक नोट्स लिखते हैं कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हमें टेक्स्ट में नजर आ रही हैं। गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने वही एचसीवी के जो पेशेंट्स हैं उनके मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको ट्रीटमेंट के दौरान फेस कर रहे हैं। अब मैं उसमें नोट करना शुरू करती हूँ। कोई कहता है मुझे हेडेक होती है जब मैं अपना इंटरफेरोन इंजेक्शंस लगवाता हूँ। कोई कहता है कि जी मुझे जो है वो मेरी भूख खत्म हो जाती है। कोई कहता है कि जी मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो इस तरह आप नोट करते जाते हैं कि उनकी क्या सिम्टम्स या क्या चीजें आप महसूस कर रहे हैं। फिर जब आप सारा डाटा पढ़ लेते हैं, उससे इमर्स हो जाते हैं, तो आप थीम्स डेवलप करने की स्टेज पे आ जाते हैं। यू फोकस ऑन चंक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एंड एनालाइज ऑफ नोट्स मेड इनटू थीम्स। लाइक मुझे लगता है कि अच्छा ये 4 चीजें अगर मैं देखूं तो ये मुझे इसके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, और ये 3 चीजें अगर मैं देखूं तो ये मुझे इसके सोशल प्रॉब्लम लग रहे हैं, और ये 2-3 चीजें मुझे उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज लग रहे हैं। तो मेरे जहन में थीम्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं उन नोट्स एंड कोडिंग्स को देखते देखते। देन जब हम सारे जो थीम्स बनाते हैं तो हम उनके बीच में कनेक्शंस देखना शुरू करते हैं कि इनके बीच में इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। जब हम एक पूरा इंटरव्यू या कंटेंट देख लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट केस। सो वी ट्राई टू ब्रैकेट प्रीवियस थीम्स, और ओपन माइंडेडली हम देखते हैं कि इस नए में कोई चीज ऐड हो रही है या निकल रही है। समटाइम्स हो सकता है कि हमें अगले केस पे आने के बाद कोई और ब्रॉडर थीम पता चल जाए, तो हम उसे भी फिर वापस रिव्यू कर सकते हैं पिछले वाले ड्राफ्ट को जाके। सो लुकिंग फॉर पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट केसेस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ कि हम आईपीए के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हैं, डिग करते जाते हैं, और फिर हम इंटरप्रिटेशन को डीपर लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। उसमें हम मेटाफर्स, टेम्पोरल रेफरेंस, बहुत सारी और चीज, क्योंकि आईपीए इज मोर अबाउट अ पर्सन जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो डीपली क्वालिटेटिवली चीजों को रिव्यू कर सकता है। तो फिर जब आप इसको करते जाते हैं तो रिफ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर एक वो डेवलप होता जाता है आपका नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज। थियमेटिक एनालिसिस जो है ये भी काफी सिमिलर है इससे। इसको भी ब्रीफली बताऊंगी। उसी तरह हम पहले गेटिंग टू नो द डाटा इसको पढ़ते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर इनिशियल कोडिंग करते हैं। उसी तरह हम फिर क्रिएट करते हैं थीम्स को कोड्स के साथ। फिर हम उनको रिवाइज करते हैं दोबारा एक दो पढ़ने के बाद दफा कि हमें कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उन थीम्स को हम रिफाइन करते हैं, उनको नाम देते हैं, और फिर हम फाइनल
एनालिसिस लिखते हैं कि ये हमारी मेन थीम्स है, ये हमारी सब थीम्स हैं। तो इसी तरह हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग दैट वी नीड टू सी कि हायरार्की ऑफ एविडेंस जो है वो हमें किस तरीके से नजर आता है। यानी सबसे पहले हम अगर देखें, ग्रीन आपको नीचे एक्सपर्ट ओपिनियन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, जिसके बाद आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ एरो जा रहा है कि ये रिसर्च डिजाइन कैटेगोरिकली जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, ये रिसर्च की हायरार्की ऑफ एविडेंस की क्वालिटी को बेहतर करते जा रहे हैं। इसी तरह हम अगर राइट साइड पे देखते हैं तो हम कहते हैं कि कहाँ तक के रिसर्च डिजाइन है जो प्रॉमिसिंग है, सपोर्टेड है और वेल सपोर्टेड। तो सबसे नीचे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नजर आती है, और उसके बाद ऊपर वन बाय वन हम देख रहे हैं केस रिपोर्ट्स हैं, केस कंट्रोल स्टडीज हैं, उसके बाद कोहोर्ट स्टडीज आ जाती हैं, फिर आरसीटीज रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं, जिसका आजकल बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। फिर मेटा एनालिसिस आता है और फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज आते हैं। तो मैं आपको रिसर्च की मेरा ख्याल है कि प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम हायरार्की ऑफ एविडेंस की बात ना करें। तो मैं ब्रीफली आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगी। सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस, ये सबसे क्योंकि टॉप पे थे तो मैं सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक रिव्यूज के बारे में बताऊंगी। सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो उसमें हम ये करते हैं कि वी कलेक्ट ऑल पॉसिबल स्टडीज रिलेटेड टू अ गिवन टॉपिक एंड डिजाइन, और फिर उन्हें हम रिव्यू करते हैं और उनकी हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वेस्टर्न कंट्रीज में वो प्रोफेसर्स मोस्टली करते हैं जो कि बहुत हाई एंड प्रोफेसर समझे जाते हैं, और उनका बहुत ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। वो स्टडीज की क्वालिटीज को एवेल्युएट करते हैं और वो फिर स्टेटिस्टिकली उसको देखते हैं कि ये रिसर्च जो है, इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उसकी क्या क्वालिटी है। अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अभी तक सिस्टमैटिक रिव्यूज जो पब्लिश होते हैं उसको वो एक रिसर्च पेपर कंसिडर नहीं करते। इसलिए पाकिस्तान में रिसर्च की इस चूंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं होता एज अ पब्लिश पेपर, तो वो लोग यहाँ पर सिस्टमैटिक रिव्यूज बहुत कम करते हैं। I hope we are at I am on the different platforms with HEC right now, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि हम इसको प्रूव करवाएं, बिकॉज इससे पाकिस्तान में रिसर्च की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत इंक्रीज होगी। पर्सनली मैं अपने हवाले से आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि मैंने 2008 में व्हेन आई वाज सबमिटिंग माय पीएचडी, तो उस वक्त मैंने 2004 से ऑलरेडी मैं काम कर रही थी। तो मेरी सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि यू नीड टू राइट अ सिस्टमैटिक रिव्यू। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े प्रोफेसर लिखते हैं, ये मैं कैसे लिखूंगी। उन्होंने कहा नहीं, दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ योर वर्क। तो मैंने शुरू में, जैसे हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते और हमारे सीनियर्स ही हमें सिखा रहे होते हैं, तो उनके कहने पे मैंने एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा विच वाज पब्लिश्ड इन ईयर 2008। और आज जब मैं लुक बैक करती हूँ तो मेरे गूगल स्कॉलर पे शायद आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड जो साइटेशन मुझे जिन पेपर्स पे मिली हुई है, उसमें से एक वो मेरा 2008 का पेपर भी शामिल है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू लिखने का एक फायदा ये होता है कि चूंकि वो बहुत सारी रिसर्चेस का एक निचोड़ होता है, आप कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको साइटेशंस जो हैं वो बड़ी ज्यादा रिसीव होती हैं। क्योंकि अगर कोई, मैंने एशियन कल्चर्स में का एक रिव्यू लिखा था कि एक अपने एक प्रॉब्लम के हवाले से कि डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर इन एशियन कल्चर्स, तो पूरे एशिया से जो भी रिसर्च करेगा या पूरे एशिया का डाटा जो भी लेना चाह रहा होगा दुनिया में से, तो वो उस आर्टिकल को साइट करेगा कि ऑलरेडी मैंने सारी रिसर्चेस को रिव्यू किया है। तो आई इनकरेज यू पीपल टू राइट सिस्टमैटिक रिव्यूज। और आजकल एक क्रॉकरेन के नाम से एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जिसके 10 मॉड्यूल्स हैं, और वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है। और वो आपको जैसे हम लोग डाटा के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो क्रॉकरेन में आपने सिर्फ टर्म्स और चीजें डालनी होती हैं, तो वो आपको अब मशीन लर्निंग टेक्निक के थ्रू वो आपको करके भी दे देता है सिस्टमैटिक रिव्यू। तो इसके लिए अब उतनी एफर्ट रिक्वायर नहीं, बस क्रॉकरेन पे आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। Then talking about meta-analysis. Meta-analysis is a valid, objective, and scientific method of analyzing and combining different results. So usually in order कि हम जितने ज़्यादा reliable हमारे results होते हैं, उनको हम meta analysis में conduct करते हैं। और वो basically जिसको मैं अभी आपसे बात करी थी कि आजकल RCTs का बहुत ज़्यादा टाइम है, तो RCTs जो हम यूज़ करते हैं
उनको भी हम मेटा एनालिसिस उनका भी हम कर सकते हैं। सो मेटा एनालिसिस के लिए भी आपको कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, बट इंटरनेशनली मेटा एनालिसिस इज अ वेरी वेरी वेल रिकग्नाइज्ड टेक्निक, और ये इट्स अ वेरी हाई एंड साइंटिफिक मेथड। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो हैं, बेसिकली इसमें हम जैसे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, उसको प्रूव करने के लिए रैंडमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम जैसे हम लोग बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन की बात करे थे, मिक्स सब्जेक्ट डिजाइन की बात करे थे, तो रेंडमाइज कंट्रोल डिजाइन आरसिटीज ये कहता है कि हर ट्रीटमेंट कंडीशन हर ग्रुप को हम एक्सप्लोर करेंगे। और जनरली चूंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकेट्री, मेडिकल साइंसेज इनमें हो रही होती है, तो विद ऑल पेशेंट पॉपुलेशन बेसिकली हमने सारी ही ट्रीटमेंट कंडीशन सबको एक्सपोज करवानी होती है। सो आरसिटीज जब तक आप पब्लिश नहीं करते, आजकल क्लिनिकल और मेडिकल की फील्ड में आपका वो रिसर्च वर्क एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज एन ऑथेंटिक रिसर्च। इसको मैं बाकी ऑडियंस को बोर नहीं करूंगी, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट अ क्लिनिकल ट्रायल एंड आरसीटी स्टडीज, ये स्लाइड बहुत हेल्पफुल होगी उनको समझने के लिए कि कैसे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमिन करते हैं, कंसेंट लेते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं, और बायसेस क्या हो सकते हैं, डिजाइन कैसे बनाना है। दिस इज अ क्रक्स ऑफ ऑल दैट मैटर। ब्रीफली इसलिए दिया है कि बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक फील्ड, तो उनको हमें बोर भी नहीं करना। कोहर्ट स्टडीज के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगी, जिससे आप सब लोगों को फौरन समझ आ जाएगा कि कोहर्ट स्टडीज होती क्या है। कोविड से मैं लिंक करना चाहूंगी कोविड के साथ। आपको पता है कि कोविड कम्स इनटू डिफरेंट वेव्स। जैसे कोविड का पहले वेव 1 था, फिर वेव 2 थी, फिर वेव 3 थी, फिर वेव 4 थी, और हर कोहॉर्ट में हमें ये पता था, हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी रिसर्चर्स की, कि वो कहते थे कि हर कोहॉर्ट में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट तरह की सिम्टोमेटोलॉजी के साथ आ रहे हैं, उनको डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं, उनकी जो डिजीज की नेचर है वो फर्क है। तो बेसिकली कोहॉर्ट स्टडी आर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जिसमें हम एक खास एक वक्त में होने वाली इंडिविजुअल्स की कोई एक खास चीज जो होती है उसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसका फॉलो अप करते हैं, और फिर हम उसके आउटकम्स को भी एक या एक से ज्यादा दफा जो है वो जज करते हैं। ये चीजें कोहॉर्ट स्टडीज कहलाती हैं। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज मेंट बाय अ कोहॉर्ट स्टडी। अच्छा, अब कोहॉर्ट स्टडी को और थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये एक स्लाइड बनाई, जिससे आपको विजुअली देख के समझ आ जाएगा कि कोहॉर्ट स्टडीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और एक रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। अब लाइक सिंस कोविड हमारे एनवायरनमेंट में अब सेटल हो चुका है, ये वायरस, तो हम एक रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो है उसमें लुक बैक करते हैं। हम अब जहां पर खड़े हैं यहां से हम साइंटिफिकली देख सकते हैं कि कोविड की वजह से हमारी पॉपुलेशन को जो ग्रुप एक्सपोज हुआ या जो ग्रुप एक्सपोज नहीं हुआ, उनको किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, या हमने जो वैक्सीनेशंस दी उन्होंने क्या क्या किस किस तरह की वैक्सीनेशंस लोगों ने रिसीव की, और उसके बाद उनको एक साल के अंदर क्या क्या सिम्टम्स जो थे वो देखने को मिले। ये तो हो गया हमारा रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, लुक बैक करना। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, कोविड को जो टाइम गुजरा उसके बाद लोगों ने वैक्सीनेशंस लगाई, अब फ्यूचर में अब एक टाइमलाइन के साथ ये रिसर्च हो रही है कि किस वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट्स थे, और उस पर कुछ इनिशियल डाटा आने भी लग गया। जैसे मैं WHO की अभी मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिसी गाइडलाइंस के साथ मैंने काम किया है 1.5 year एज अ टीम लीड। तो उसमें हमने ये देखा है कि कुछ सिम्टोमेटोलॉजी हमें हार्ट के हवाले से देखने को मिल रही है, कुछ हमें ब्रेन के इश्यूज के हवाले से देखने को मिल रही है। अब ये रिसर्च इज गोइंग ऑन, अब हम इसको लुक अहेड करें, बट वी विल नीड टू सी कि कितने परसेंट जो है ये बात एक्यूरेट साबित होती है विद द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट डाटा। अभी तो ये इनिशियल फेज में है कि हमें इसे कंट्रोल वेरिएबल्स भी देखने हैं कि ये नेचुरली अकरिंग प्रॉब्लम है या इनका कोई वैक्सीन से रिलेशनशिप है। अभी इट्स ऑल अ मिथ, अभी इसके ऊपर हम कोई बात वैसे नहीं कह सकते सॉलिड तरीके से कि दिस दिस इज अ कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। अभी इट्स गोइंग ऑन। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज जो हैं ये फ्यूचर में हमें 2030 में बताएंगी कि इसका लिंक जो था वो किस चीज के साथ था। सो
इसमें हमने जो डिजाइन करना होता है, जो हमने किया है, और वो मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ कि स्टडी पॉपुलेशन है हमारे पास। एक ग्रुप एक्सपोज्ड ग्रुप है जिनको कोविड हुआ, एक ग्रुप अनएक्सपोज्ड ग्रुप है जिसको कोविड नहीं हुआ। उसके बाद उस एक्सपोज्ड ग्रुप में दो फर्दर ग्रुप है, एक इवेंट ग्रुप है जिसने वैक्सीनेशन ली, एक नो इवेंट ग्रुप है जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली। इसी तरह अनएक्सपोज्ड ग्रुप में भी दो ग्रुप्स हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन, जिन्हें कोविड नहीं हुआ मगर उन्होंने वैक्सीनेशन ली, और जिन्हें कोविड नहीं हुआ और उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं ली। तो अब आप एक स्टडी पॉपुलेशन अगर 2 मिनट के लिए अपने आप को ज्यूम करें, तो यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू आर द पार्ट ऑफ एक्सपोज्ड ग्रुप और अनएक्सपोज्ड, और आप इवेंट ग्रुप थे या नॉन इवेंट ग्रुप थे। तो आप खुद मेंटली कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस तरीके से हम स्टडी पॉपुलेशन को कैटेगराइज करके फिर उसके ऊपर हम अपने टूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन करनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई डिजाइन्ड दिस स्लाइड फॉर यू। केस कंट्रोल स्टडी इज अ टाइप, जिसकी मैं आपको एक ये भी रिसर्च है जो हर तरह की रिसर्च में हम केस कंट्रोल नहीं करते, बट केस कंट्रोल स्टार्ट्स where we have the individuals who have the outcome of interest. Like it's a type of observational study commonly used to look at factors associated with disease or outcome. जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एक केस जो है उसको पूरा स्टडी करें। लेट्स से हमारे पास अगर कोई डिप्रेशन का केस है, स्किज़ोफ्रेनिया का केस है, तो हम केस कंट्रोल में उसके मेंटेनिंग फैक्टर, उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स, उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, उसके मैनेजिंग फैक्टर्स, कब हुआ, कैसे हुआ, किस चीज से एग्रीवेट हुआ, फैमिली सपोर्ट क्या थी, प्रोग्नोसिस क्या था, इन चीजों को हम फोकस करते हैं। और ये केस कंट्रोल स्टडीज एक्सक्लूसिवली ज्यादातर जो हैं वो कुछ सर्टेन फील्ड्स में ही की जा सकती हैं। इट्स नॉट मच एप्लीकेबल टू ऑल अदर फील्ड्स। तो बहुत ज्यादा इसकी भी शायद डिटेल्स बताना इतना जरूरी नहीं है। ये एक एग्जांपल है जो इसी हवाले से दी गई है, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू रीड। सो केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन में भी जिन लोगों का इंटरेस्ट हो, इसी तरह मैंने एक ये स्लाइड तैयार की जो कि आपको एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ, आउटकम क्या था, सैंपल केसेस क्या थे। जो लोग इंटरेस्टेड हो केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन में, वो इस स्लाइड को रिफर कर सकते हैं। आई विल लीव इट विद यू पीपल। नाउ केस रिपोर्ट जो है वो हम केस कंट्रोल स्टडी के ऊपर ही लिखते हैं। जब आपने एक केस पूरा असेस कर लिया तो आप उसके सिम्टम्स, साइन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप प्लान के साथ एक केस रिपोर्ट बनाते हैं। एंड ये जनरली हमें एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरी प्रोग्रेस बताती है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि केस रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं फ्यूचर रिसर्चेस करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए, मेडिकल प्रोग्रेस करने के लिए, प्रोवाइडिंग अस न्यू आइडियाज टू इम्प्लीमेंट न्यू ड्रग्स इन द पॉपुलेशन। तो केस रिपोर्ट्स के ये फायदे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन इज अनदर साइंटिफिक मेथड और कमेंट। इसमें हम करते ये हैं कि जब हमारे पास कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती जिससे हम जज कर सकें कि ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होगा या नहीं होगा, तो वहां पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन यूज करते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं एक कोई, जी जी, 7 मिनट्स आर एफ मेरी लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन को मैं सिर्फ एक लाइन में ब्रीफ कर दूं कि मैंने अगर किसी मैटर पे ओपिनियन लेना है तो मैं 5 या 6 एक्सपर्ट्स की राय लूंगी, और अगर वो उसे इंडोर्स करेंगे, उसमें से कोई 80% इंडोर्समेंट मेरे पास होगी, तो मैं उसको कंटेंट वैलिडिटी की बेसिस पे अप्रूव करूंगी कि ये मेरा डिसीजन या मेरा एविडेंस जो है ये ठीक है। लास्ट स्लाइड इज अबाउट एथिक्स मैटर। जो भी रिसर्च आप करें, जैसे भी करें, मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटेग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी का ख्याल रखना है, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना है, हमें ट्रस्ट को बिल्ड करना है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कोई फेक रिजल्ट्स नहीं देने, और हमारी जो रेगुलेटरी और लीगल बॉडीज हैं उनके साथ हमें कंप्लाई भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें अपने पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना है। सो बेसिकली आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करें या क्वालिटेटिव रिसर्च करें, दोनों रिसर्चेस में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। Let's embrace the diversity of the methods available to us and strive for the excellence in all our research endeavors. That's more important. And Kurt Lewin says, which was a very famous German-American psychologist, no research without action and no action without research. So this is also one of my favorite quote. Thank you very much for listening to me patiently. Uh, Over to the focal person. आप
क्वेश्चन आंसर्स के लिए या जो भी आप कहें। Assalamu alaikum. जी My वालेकुम name is अस्सलाम। my name is Adr Ali Khan. I am assistant professor in Government Graduate College Pinwal Chakwal, and I am जी doing जी PhD from University of Engineering Technology Tax Law. And my research area is in computer vision, with the help of computer vision to detect the alopecia areata disease. My question is जी जी regarding research ethics. कि जिस तरह भी जी आपने बात की कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, और इसमें हम्म आपने एक वो पीयर रिव्यू की बात भी की। तो हम्म पीयर रिव्यू जर्नल का तो अपना तो पीयर रिव्यू होता है, लेकिन मसलन जिस तरह आपने कहा कि और पीपल्स के साथ भी, यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी के साथ डिस्कस भी इवन करेंगे ना अपना आइडिया भी, तो पता तब चलेगा कि नेक्स्ट वो हो सकता है वो पब्लिकेशन करके बैठे हो, या अपने टेबल के ऊपर अगर आपने रिजल्ट भी प्रिंट करके रखे हुए हैं तो पता तब लगेगा कि वो उसने पेपर पब्लिश किए हुए। जी, I understand आपका concern and it's unfortunately truth, but हम यहाँ पर peer review की ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ share करें इस तरह से। There are the systematic channels available at universities. For instance, आपकी university ने कोई research ethic board बनाया होगा, या कोई university research board बनाया होगा, या research ethics की कोई committee बनाई होगी। वहाँ पर जैसे hospitals में भी बनी होती हैं, जब हम कोई trials करना चाहते हैं, वहाँ पर हम अपना काम present करते हैं और वो बोर्ड उसको देखता है और वो साइनॉप्सिस को उसको अप्रूव करता है। और मिनिमम तो यूनिवर्सिटीज के अंदर एडवांस स्टडी रिसर्च बोर्ड बने होते हैं या डीडीसी बनी होती हैं, तो उन फोरम्स पे एटलीस्ट हम अपना काम प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारी जो मेजर एथिकल कंसर्न्स हैं वो कवर हो जाएं। अदरवाइज आपकी मैं बात को समझ रही हूँ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट इवन देन वी हैव टू डिफेंड द प्रपोजल ताकि हम एक लार्जर ऑडियंस के लिए एक बेहतर चीज कर सकें। Since only the ID card numbers are coming, I am unaware of the people's name, but जो भी लोग message पे कुछ comments दे रहे हैं, I am really thankful to you all for giving this positive feedback. मुझे बहुत खुशी है कि आपने अगर इससे कुछ भी सीखा या कुछ क्लैरिटी हुई, so बहुत बहुत आपकी इस पॉजिटिव फीडबैक का शुक्रिया। Any other question, please? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मोहम्मद वालेकुम इस्लाम अस्सलाम। खान, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से। मैडम ये मेथड और मेथडोलॉजी में जो डिफरेंस है प्लीज इसको क्लियर कर दें। और जी एक और पॉइंट है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो लिटरेरी रिसर्च जो है आपने जी जो अभी बताया, तो चूंकि वो उसके वैसे तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, आर्काइव स्टडीज भी होती हैं, लेकिन डोमिनेंटली इंटरप्रेटिव रिसर्च है। तो क्या वो जस्ट फिनोमिनोलॉजी और हार्मोन्यूटिक्स की डोमेन में आएंगे? देखिए आपने बात सही की, मैं टच करना चाहती थी आर्किवियल डाटा को भी, लेकिन वो टाइम भी आपको पता है 1.5 आवर इज टू लेस टू डिफाइन एवरीथिंग। तो वो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब पहले दे दूं, मेथड एंड मेथोडोलॉजी में जो आपने डिफरेंस पूछा है। बेसिकली रिसर्च में जो स्पेसिफिक मेथड यूज हो रहा होता है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं, जैसे सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस, तो वो मेथड कहलाते हैं। मेथडोलॉजी जो है इट्स बेसिकली द फ्रेमवर्क जो कि बेसिकली हमारे मेथड की लॉजिक को बता रही होती है। सो उसके डिजाइन को और उसकी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम जो है वो मेथडोलॉजी में डालते हैं। जैसे हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है या मिक्स मेथड मेथडोलॉजी है। सो दिस इज द प्राइम डिफरेंस। अभी यहाँ पर किसी ने एक सवाल मुझसे किया था विच वाज अबाउट कि आपने मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन को फोकस नहीं किया ज्यादा। मैं उनको भी आंसर करना चाह रही हूँ कि मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन जो है वो मैंने इसलिए फोकस शायद बहुत ज्यादा नहीं किए क्योंकि मैंने बिटवीन एंड विद इन को काफी डिटेल से बताया था। सो व्हेन वी आर इम्प्लाइंग बोथ रिसर्च डिजाइन टुगेदर तो वो हमारा मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन बन जाता है। बट इन एनी केस इफ एनीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट दीज टेक्निक्स तो ये मैं दे दूंगी प्रेजेंटेशन भी, एंड यू कैन रीच मी आउट ऑन ईमेल। बल्कि आप गूगल ही करेंगे मेरा नाम तो आपको मेरी ईमेल एड्रेस एंड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई कैन हेल्प यू आउट इन नोइंग एनीथिंग एल्स इफ यू वांटेड टू नो। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज?
थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो योर नेम्स, लेकिन आपकी बहुत सी दुआएं और पॉजिटिव फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जिस चीज़ के लिए अपीयर हो रहे हैं, आप ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब और कामयान करे, और आप सब लोग अपनी जो प्रमोशंस हैं वो आपकी हों, और आप इसके पेपर्स भी जो हैं वो अच्छे से क्वालिफाई करें। सो मेनी मेनी बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू।